Welcome to Sip and Share 3.0. Since this is a 3.0 Sip and Share, we also have one frame today and three different stories coming in together. We have Alok Barnwal, Mohit Oak, and Bhalchandra Thorat coming in for today's episode. So these three guys are maybe you can say three idiots of end user segment, or maybe three Powerpuff Boys of end user segment. So together, let's explore their power secret. So let me introduce these Powerpuff Boys to you. We have Bhalchandra Thorat with us. Hi, Bhalchandra. Hello. Bhalchandra is looking after marketing. And Bhalchandra के बारे में अगर मुझे बताना हो तो I'll say he's encyclopedia. अगर आपको कोई चीज ChatGPT पे नहीं मिल रही, not able to find anything on Google, you will definitely have some answers from Bhalchandra around it. And then we have Alok Barnwal with us. Alok Barnwal is yellow pages of the globe. I think कुछ भी अगर आपको कहीं पे अगर नहीं मिले, you have checked the complete Just Dial, you have checked the India Mart, and you have also checked the yellow pages. If you're not able to find anything, please reach out to Alok because he will have some answers and some vendors for you to give. And then we have Mohit Oak with us. Hi. Mohit Oak, I think I have a very special introduction for him. जैसे बोलते हैं ना, angry young man. एकदम उसका उल्टा कर दो, spiritual and calm young man. That is Mohit Oak. I think he's the first man or first person in sales that I've ever seen who is an introvert and a great guy at sales. मतलब ऐसा blend आपको मिलता नहीं है where you have the salesperson doing extremely well in sales and then introvert also. So I think let's explore them more and ask some questions to them. So Mohit, you have worked in all the departments. You have worked in brand, and then you were in marketing, and now you are cluster head. You are managing sales. So, which out of these three departments have been your favorite one, or you have enjoyed most while working with Vashi? तो इनिशियली आई स्टार्टेड विद ब्रांड. तो ब्रांड सबसे करीब है, पर अगर मैं लर्निंग की बात करूँ या फिर एन्जॉयमेंट की बात करूँ, सो आई एन्जॉयड वर्किंग विद मार्केटिंग टीम. रीज़न उसका ये है कि एक थर्ड पर्सन अप्रोच यहाँ पर आ जाता है. आपको सेल्स टीम के साथ काम करना है, उनके चैलेंजेस समझना है. ब्रांड टीम के साथ काम करना है क्योंकि प्राइसिंग तो वहीं से आएगी. ऑपरेशंस टीम के साथ बात करना है क्योंकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो सारे डिपार्टमेंट के साथ एक रिलेशन मेंटेन रखना है और उस तरीके से एक सोल्यूशन देना है कस्टमर को. तो लर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है. तो मार्केटिंग इज़ वेयर आई एन्जॉयड अ लॉट. Nice. I think now you have passed the baton of marketing to Bhalchandra, right? So Bhalchandra, you are also such a blend where you have worked in procurement first and then now you are working in marketing. So which role or which department you enjoy more? My answer would be the same as Mohit said. I really enjoyed working in marketing. And no matter what I would say, I started my journey with procurement. I may get a very hard backlash for this, but I feel that marketing is a really good job as compared to procurement, because procurement is a very thankless job is what I feel. Acha. Yeah. I'm not sure, but Alok can be the right person to answer that. Alok, what do you say? Do you feel procurement is thankless job? नहीं ऐसा नहीं. प्रोक्योरमेंट थैंकलेस जॉब है क्योंकि मुझे डेली नई अपॉर्चुनिटी मिलती है वर्क करने के लिए. नए आइटम्स आते हैं डेली. तो मुझे पैन इंडिया रिक्वायरमेंट रिसीव होती है, तो टेक्निकल रिसीव करना, वेंडर से निगोशिएट करना, वेंडर फाइंड अप करना मेरे लिए रोज़ नया चैलेंज है. तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वर्क करने के लिए. तो मैं इसको थैंकलेस तो नहीं थैंकलेस मत बोले यार. बहुत बार मैं थैंक यू बोलता हूँ उसको. थैंकलेस जॉब मेरे लिए तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं. अच्छा चलो हम हमारे येलो पेजेस से ये पूछते हैं कि यहाँ पर तो यू आर सेइंग यू आर नोन फॉर योर बेस्ट नेगोशिएशन स्किल्स, राइट? यू आर नोन वेयर पीपल से दैट आलोक से बेटर प्राइसिंग आप कहीं पे लेके नहीं आ सकते. तो घर पे भी ऐसे ही है, मतलब आर यू लाइक अ बेटर नेगोशिएटर देन योर वाइफ, और घर पे वाइफ इज अ बेटर नेगोशिएटर? अगर इसमें मैं बात करूँ तो वाइफ ही, अगर मैं बोलूँगा तो वो बेटर निगोशिएटर है, मेरे से अच्छी निगोशिएट करती है. अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली मैं केस बताता हूँ. मुझे उसने कुछ वेजिटेबल्स के लिए बोला था कि जाके प्रोक्योर करके लेके आओ. मैं गया लेके आया. उसने मुझसे रेट पूछा तो मैंने बोला 50 रुपीज़ पर केजी. उसने बोला मैं कल ही अभी इसको 40 रुपीज़ पर केजी में लेके आई हूँ. तो आई थिंक मुझे ये लगा कि मेरे से बेटर निगोशिएटर वो है क्योंकि उसको मार्केट का रेट पता है, मुझे उस चीज़ का पता नहीं है. तो वो निगोशिएट जिस हिसाब से कर लेती. इवन
सब्जी वाले के साथ धनिया भी लेके आती है वो साथ में, तो वो बेटर निगोशिएटर है उस रेट के लिए, तो उस आइटम के लिए। बट मेरे ख्याल से ये हर घर का यही केस होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एवरी वाइफ मस्ट बी द गुड नेगोशिएटर, better negotiator, except me. unless and until it is you. सो आई थिंक तुमने इसका बात करने का तरीका देखा है, मेरे को मेरी वाइफ ने वेजिटेबल सोर्स करने के लिए भेजा, procure करने के लिए। प्रोक्योर करने के लिए, और बोल रहा है कि मैंने उसको कोट किया 50 रुपीज पर केजी, मतलब मैंने उसको सोर्स किया 50 रुपीज पर केजी। सो आई थिंक इसके खून के अंदर प्रोक्योरमेंट, दैट यू कैन नॉट टेक आउट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम आलोक। पीआर रेस किया था। ओके, सो मोहित, जैसे हमने आलोक का देखा कि देखो ऐसा मुझे लगता है कि वाइफ से तो कोई नहीं जीत सकता, राइट? ऑल ऑफ यू आर मैरिड, सो डू यू ऑल्सो फील द सेम डायलेमा एट होम, यू नो, बीइंग इन सेल्स, तो यू मस्ट बी ऑलवेज यस सर, यस मैम टू द कस्टमर, यू नो, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट to your customer, but do you use the same politeness with your wife also? नहीं, एक दो बार ट्राई किया है, बट वो एक बार कस्टमर कन्विंस हो जाएगा, बट वाइफ को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड एक दो बार तो वाइफ ने बोल भी दिया, ये तेरे शुगर कोटेड वर्ड्स तू कस्टमर के पास ही रख, मेरे पास मत लेके आ। And just imagine you tell this to your wife that I'll get back to you, and then wife is like, you just get back to me right now. एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं उसमें। Yeah. So Balchandra, same question to you if I have to ask. Since you know, in your professional life, you are somebody who is marketing multiple products and multiple categories to customer, right? तो तुम्हें रोज जाके रोज की आदत होगी कस्टमर से बात करने, सर ये भी परचेज करो, ये भी करो। तो when your wife goes shopping with you, so do you also tell her कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, or you are like on the husband side in your personal life कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं खरीदे दूंगा, don't waste money on all these things? Absolutely. So as far as wife is concerned, as already all of you are aware, and maybe viewers will be aware of it, मैं बहुत ही नॉन मटेरियलिस्टिक पर्सन हूँ। वाइफ तो ना होगी, वाइफ नहीं है, जितना मैं नॉन मटेरियलिस्टिक हूँ उतनी मेरी वाइफ ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। शी इज अ शॉपaholic पर्सन, सो आई लिमिट हर एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल टाइम्स। आई होप मेरे अंदर का मार्केटिंग पर्सन घर पे बाहर ना आए कभी, नहीं तो एक दिन में ही पूरी सैलरी चली जा सकती है। True that. Okay, so Alok, you know, one thing I've always I'm always surprised about this, that there are so many categories in the maintenance repair operation supplies. There are 50-60 plus categories, so many brands, and every brand has a spread of you know, products in it. तो इतनी सारी technical aspects हैं, इतने सारे different products हैं, तो how do you actually remember these products and the technical specs also? I mean, every time if a customer tells you कि मुझे ये चाहिए, and you most precisely know कि actually में ये क्या मांग रहा है, so इतना कुछ, you know, you have been learning and you have been able to give answers to everything. How have you been able to do it? मतलब मुझे तो खुद नहीं याद रहता यार कि you know इसकी technical specifications क्या हैं. I might know the categories, brands, but एक एक item की specs जानना is very difficult. How do you manage that? मुझे टोटल 11 years of experience हो चुका है इस फील्ड में, तो मुझे डेली जो भी रिक्वायरमेंट आती है मैं पहले उसका PR चेक करता हूँ, और PR चेक करके मैं उसका यूजेस फर्स्टली देखता हूँ कि उस मटेरियल का यूज कहाँ होने वाला है, उसका OEM क्या है। तो देखते देखते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं आइटम देख के उसका नेचर बता सकता हूँ, या किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, या कहाँ पे उसका यूजेज है। वो करते करते मैं डेली अपडेट हो गया, क्योंकि मुझे डेली रिक्वायरमेंट आती है। जब भी कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, जब भी कोई नया मशीन मार्केट में आता है, उसकी अगर कोई PR जनरेट होती है तो वो अपडेट होता रहता है। तो धीरे धीरे सारी कैटेगरी आइटम्स मुझे अपडेट हो गए हैं, इवन ब्रांड भी। मेरे लिए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये चीजें मैंने भी वाउच की है। बहुत बार ऐसे होता है कि कस्टमर खुद मुझे डिस्कशन में कुछ फोटो या कोई कैटलॉग दिखा देता है, मैं वहां से आलोक को व्हाट्सअप कर देता हूँ, तो वो बोलता है कि हाँ मेरे पास है इसका वेंडर, मैनेज हो जाएगा। ऐसे तो नहीं, इसको येलो पेजेस बोलते हैं। वी कॉल हिम येलो पेजेस फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। सो आई थिंक नॉट जस्ट दिस यार मोहित, मैंने even with you when you were shifting from you know, brand to marketing, so in that shift, no, I have seen that you have learned the spread of categories and spreads of brand very easily. I've seen for the first time that within 15-20 days somebody who, since you were in the brand, तो आपका एक brand का experience था, एक particular category का experience था, वो एक category से जब when you shifted to the marketing role, so there were some 50-60 categories that you had to learn, and you were so quick. I mean, within 15-20 days मेरे ख्याल से you were able to pick up those categories, those brands.
and I remember shifting के बाद में after 25 days when we were discussing, you were telling me brands कि इस वाली कैटेगरी में ये brands भी आते हैं. तो I mean, how that transition happened, मतलब ऐसे switch off switch on कैसे होता है यार? इसमें मेजरली मतलब वाशी ज्वाइन करने से पहले मैं मेंटेनेंस में था, तो मेंटेनेंस में होने की वजह से कैटेगरी, ब्रांड्स, ये चीज़ें पता थी थोड़ी बहुत, और वही हेल्प की मुझे यहाँ पर आके सीखने के लिए. सेकेंडली वाशी का पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, ऑलरेडी इतना बड़ा था, तो उसमें भी बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स थे. तो कस्टमर के साथ जब भी एक ब्रांड के लिए भी जाता था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाशी को ही इंट्रोड्यूस करना था कस्टमर को, तो सारे ब्रांड्स की बात करनी थी. तो मल्टीपल ब्रांड्स और मल्टीपल कैटेगरीज थे पहले से. आज काफ़ी बड़ा हो गया है ये सारा पोर्टफोलियो, तो वही बेनिफिट हुआ मुझे. So does it help you in sales when you go to customer and give the portfolio of so many categories? मतलब being precise is more helpful for the customer, or giving a complete spread to the customer helps? इसमें chances of conversion is far better if you have multiple products. और थोड़ा सा एनालिसिस करके अगर या होमवर्क करके जाएंगे कस्टमर के पास पहले से, तो हमें पता चलता है कि राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट कैसे पिच करना है, और अभी मैं क्या पिच करूँगा तो मेरा एंट्री हो जाएगा. बहुत बार कस्टमर के पास हमें एंट्री करना इंपॉर्टेंट होता है. एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया, कुछ पहले के सप्लाइजेस थे जो इनिशियल ऑर्डर्स आएंगे वो अगर टाइमली सप्लाई कर दिए हमने, तो फिर कस्टमर को मल्टीपल कैटेगरीज में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है. ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के फेज में कि वाशी दे सकता है. Nice. अच्छा, तो since we are discussing about sales, तो even today मैं आज सुबह LinkedIn when I was scrolling LinkedIn, तो I saw a meme on LinkedIn, तो जिसमें the meme was like कि नीचे ऐसे crowd था, and crowd में ऐसे people were saying that sales is easy, and ऊपर एक आदमी था who was supposed to be a sales manager I think, तो उसने लिखा था कि एक बार आके तो देखो. तो do you also feel the same thing that sales is a difficult job, जहाँ पर लोगों को लगता है कि बहुत ग्लोरीफाइड है, बहुत अच्छा है, या इट इज़ ईजी टू डू, और बट और यू एक्चुअली फील दैट अगर आपको सेल्स का स्किल आता है तो इट इज़ एन ईजी थिंग टू वॉक विद सेल्स? सेल्स का स्किल अगर आता है तो इट इज़ ईजी फॉर यू, बट वो स्किल लाना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना इज़ अ बिग टास्क, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हैं जो लिंक्ड होती है उसके साथ. तो आपको बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है. आप जाके कमिटमेंट करके आए, बड़ी बड़ी बातें करके आए, बट अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए तो फिर नेक्स्ट टाइम आप वो फेस लेके जा नहीं सकते हो कस्टमर के पास. तो जब भी कुछ कमिटमेंट हम कस्टमर को देते हैं, तो वो कमिटमेंट क्या हम फुलफिल कर सकते हैं, क्या वो इंफ्रा हमारे पास रेडी है, क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आज रेडी है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही हमें कमिटमेंट्स देनी चाहिए. नहीं तो फिर स्लो जाओ, बट ऐसा घुसो कि कोई फिर आपको वहां से बाहर नहीं निकाल पाए. नाइस राइट, गुड. सो अच्छा, तुम दोनों से मुझे एक सवाल पूछना है. यू बोथ ऑफ यू कम्स फ्रॉम अ सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप वेयर मार्केटिंग, आई थिंक यू मस्ट बी वर्किंग मोस्टली विद द procurement team, right? Your jugalbandi, I would say, is most important as far as the success of marketing is concerned, and success of the procurement team is also concerned. So today's world functions on this thing कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, मेरे पास एप्लीकेशन है, मैंने ऑर्डर किया, मुझे विदिन 15-20 मिनट्स मटेरियल मिल जाना चाहिए. तो even I have the same expectation when I order something which is required for my personal needs. I just simply order and I get the material within 20-25 minutes. In such a environment where the customer's expectations are reducing every single day, how in marketing you manage to commit the realistic, how are you able to manage the balance between the realistic and the expectations of 25-30 minutes or maybe 1 day, 2 day with the customers, and how are you managing the material sourcing? Both of you, how do you plan that, and how do you ensure that this is actually ultimately the customer feels that the entire contract or the partnership with Vashi is successful? You want to go first? Yeah. So basically what happens is, as you rightly said, that there is a lot of expectation now that you have rightly mentioned Zepto and Blinkit and 10 minutes delivery, quick commerce. Where we operate, it is an industrial distribution segment. It is a B2B segment wherein there are many of the competitors, but our major competition is not the competition that there is in market right now as far as the business development is concerned. It is basically the dogma
of expectations that a client has created Excuse regarding. me, can I have the dictionary please? What does this dogma means? यार ऐसे बड़े-बड़े words यार कहाँ से लेके आते हो तुम? इसलिए it is उसको basic- encyclopedia बोलते हैं. Actually, Yeah. seriously. Yeah. So basically, it is a mindset of If the you can client. please explain what is dogma. In simple words, it is a mindset. Okay. In a negative way or in a pressurized way. So our basic job, my basic job and my team's basic job is to give realistic approach to the partnership that we are doing with the clients. First. Second, have very transparent and very clear communication with the client whenever we do any, and give our positives and negatives on the go, so that client does not come back on the trust level, because our entirety of the conversation happens on the trust level. Trust is the base of our building. There is a crack on base and the whole structure collapses. आलोक ये सही बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कस्टमर को जाके बोल के आता है कि सर कल आपको मटेरियल दे दूंगा और आके तुझे बोलता है कि मुझे कल के कल मटेरियल कैसे भी करके डिलीवर करके दे. इजी राइट? इजी एक्चुअली मेंटेन्स द बैलेंस और ही प्रेशराइजेस यू कि मुझे मटेरियल चाहिए? जॉब का सवाल है. दोनों केसेस होते हैं. कभी कभी कस्टमर्स भी प्रेशर डाल देते हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं इजीली, तो उसके लिए हम लोग पहले से भी अपना वेंडर डेटाबेस मेंटेन करके चलते हैं कि इन केस अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो हमें नियर बाई हम वेंडर जो भी लोकल वेंडर डेवलप किए हैं वहाँ से मटेरियल लेके कस्टमर को सर्व कर पाएँ. लेकिन कभी कभी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो फोटो सीक्वल भेज देते हैं, कहते हैं इस फोटो के बिहाफ पे आप मुझे मटेरियल दे दो. तो वो चीज़ें मिलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है फैब्रिकेशन का आइटम हो, वो फोटो में साइज छोटा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में उसका डायमेंशन टेक्निकल पता नहीं, तो वो चीज़ें हम कर नहीं सकते. कैसे मैनेज करते हो यार अगर किसी कस्टमर ने फोटो भेज दिया कि मुझे ये चाहिए, सो हाउ डू यू डिकोड दैट? डिफिकल्ट होता होगा ना यार. डिफिकल्ट तो होता है. अगर वो कस्टमाइज आइटम है तो उस केस में कस्टमर से हमें डिजाइन या ड्राइंग लेनी पड़ती है. लेकिन अगर स्टैंडर्ड आइटम्स है जैसे बियरिंग्स हो गया या कोई इलेक्ट्रिकल्स आइटम हो गया, तो उसके पार्ट नंबर से हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा मेक है, कौन सा आइटम डिस्क्रिप्शन है. उसके बेस पे हम लोग वेंडर या ओईएम को टच करके मटेरियल अरेंज कराते हैं फिर लोकली एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट. बहुत बार मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि आलोक के पास कभी भी अगर हम ऐसे कोई केस लेके जाते हैं कि कस्टमर आज कल के कल चाहिए, कस्टमर को हमें देना पड़ेगा क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है अपने पास, तो वो सपोर्ट उससे मिलता है. वो फिर कहीं से भी ढूंढ के लेके आएगा बट वो डिलीवर कर देता है नेक्स्ट डे. So the yellow Thank you. pages. So I think I have seen those Karan Johar episodes. So सबसे ज्यादा जिस चीज में मजा आता है देखने में ना, that is rapid fire round. I wish कि मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकती और थोड़े से गॉसिप बाहर आते. Controversial questions. हाँ, कंट्रोवर्शियल आंसर्स बाहर आते. But I know that we are. हमने एनडीए साइन नहीं किया अभी तक मैडम. So yeah, you can go ahead. Yes, I think I would like to ask some professional rapid fire questions to you. Yeah. फटाफट से आंसर देना और जो लेट हुआ वो स्किप. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद भालचंद्र. मिथ अबाउट योर रोल. Marketing is the easiest job. ओके, Yeah. मिथ अबाउट योर रोल. एवरीवन कैन डू द प्रोक्योरमेंट या गेटिंग द प्राइस फ्रॉम मार्केट. ओके, तो हम परचेज की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एग्रीगेशन में है इसलिए. Yeah. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं दे सकते और वो हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर फॉल्स कमिटमेंट होके फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके. Was it a rapid fire or what? इट इज अ रैपिड Yeah. फायर. सो आई विल चूज द पर्सन जिससे मुझे पूछना है. आलोक तू बता, व्हाट इज द चैलेंज ऑफ योर रोल? वन चैलेंज. चैलेंज ये है कि कस्टमर कभी कभी कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स भेज देता है, मतलब जो उसको खुद टेक्निकल पता नहीं होता है. वो बोल देता है मुझे बस सेफ्टी के कुछ आइटम्स चाहिए या सेफ्टी ग्लव्स चाहिए. अगर देखा जाए उसको यूज ही नहीं पता है, उसको केमिकल में यूज करना है या उसको फिर मेटल्स के लिए यूज करना है. जब भी हम कस्टमर को कुछ भेजते हैं, मतलब उसको भेज दिया मैंने ग्लव्स अगर केमिकल का, तो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए ही नहीं था, मुझे तो मेटल के लिए यूज करना है. तो टेक्निकल अपने को पता ही नहीं होता है. जब तक कि टेक्निकल पता ना हो, ये सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग है. टेक्निकल पहले अगर इंक्वायरी के साथ चीज़ें आ जाएं तो. तेरा मार्केटिंग का चैलेंज? For me, the challenge is patience, having patience, because the marketing involves a long-term process engaging with the client. So if you don't So have that patience that patience challenge is with you or with the customers? with us, having patience, With you yeah, having patience. yes. क्योंकि हम लोग उसके पीछे पड़ते थे कि हाँ. भाई क्या हुआ, तू कब से तो जा ही रहा है वहाँ पे. अभी तक क्रैक क्यों नहीं हो रहा कुछ? अभी तक ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे? मेरा बिलिंग कब से स्टार्ट होगा? सबसे ज्यादा पीछे मेरा- लगाई पड़ती मेरा है। बिलिंग कब से मेरा स्टार्ट billing होगा? कब से स्टार्ट होगा?
So sales wins as the easiest job. अच्छा चलो, let's start शुरू with करूँ, मैं the. देता हूँ चैलेंज। अच्छा, ये रैपिड था, ये रैपिड राउंड था. तो चैलेंज में ये भी हो सकता है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल करना मेरे लिए एक चैलेंज ही होता है। वो तो आई थिंक मेरे, इफ यू आस्क मी, सिंस आई आल्सो पार्ट ऑफ सेल्स, तो मेरे ख्याल से सेल्स का चैलेंज सबसे ज्यादा ये होता है कि व्हेन you are not able to sometimes get support from the operations or from the procurement or sourcing team ना, तो कस्टमर को कन्विंस करना कि सर आपका मटेरियल, अगर कस्टमर को आज क्या चाहिए, उसके यहाँ पर इमरजेंसी है और आप आज नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ वट एवर XYZ रीजन, अगर आपको वो कल देना है या परसों देना है और उसकी लाइन में कुछ इश्यूज हैं, तो उस टाइम पे कस्टमर को संभालना वो सबसे ज्यादा टफ है मेरे ख्याल से. वो एक सबसे ज्यादा टफ है। और अगर हम कुछ कमिटमेंट देके आए हैं कस्टमर को और वो हमारे बैकएंड में एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि क्या इमरजेंसी क्रिएट हुई है और वो पूरा फुलफिल करके कस्टमर को राइट टाइम पे राइट सर्विस देना। चलो तो चैलेंज तो नहीं बता ब्यूटी क्या है सेल्स की? ब्यूटी ये है कि बहुत मल्टीपल लोगों से बात करने को मिलता है। जिन ऐसे डिपार्टमेंट्स में जाके लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है कि जो डिपार्टमेंट के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आलोक, तेरे प्रोक्योरमेंट का ब्यूटी क्या है? प्रोक्योरमेंट का ब्यूटी क्या है, मुझे रोज डेली नए आइटम्स की रिक्वायरमेंट मिलती है, नए OEM को मैं टच करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग से बात करता हूँ, कभी कभी मुझे प्लांट विजिट करने का भी मौका मिलता है वेंडर्स के यहाँ, तो मैं जाके चीज़ें देखता हूँ कि कैसे कौन सी चीज़ें बन रही है। अगर कोई फैब्रिकेशन का आइटम है उसकी स्टैंपिंग कैसे हो रही है, उसकी पियर्सिंग कैसे हो रही है, तो मुझे रोज़ नई चीज़ें सीखने को मिलती है कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एक्चुअल में अगर जो मैं मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ उस प्रोडक्शन में यूज कहाँ हो रहा है, तो मेरे लिए ये ब्यूटी ही है पूरा। मार्केटिंग? For marketing, being in the room of decision makers is what is the beauty of the job. I think he reminds me of Shakespeare. The kind of sentence and the language he uses, no? Yeah, you were saying something. Sir. Yeah, Selection of words. yeah, selection of words. So being in the room full of decision makers is the beauty of my job. Apart from traveling, obviously, because traveling is not that great when it comes to marketing because of the hours of traveling. But being in the room full of decision makers of those organizations which you have already seen as Fortune 500s or you have admired all your life. Wow. Yeah. Nice answers यार. इसके लिए तो ये वाले के लिए तो I'll give भालचंद्र 1 point. And I'll give that first question वाला जो आंसर था आलोक 1 point. And I'll give 1 का question का 1 point to you. So तुम तीनों ही tie कर गए. So there is no gift. I'm extremely sorry for that. You 3 can together gift me something if you would wish to afterwards. Okay. You can have a cup of tea if you want from our side. Yeah. Cheers. Every day when we are sitting together for anything, so बहुत सारी चीजें, बहुत सारी funny चीजें होती हैं, you know, we laugh together, we have shouted on each other, and we have done a lot of parties together, we have done a lot of other activities together which have made us more stronger as a team, right? But but I would like to know your individual, you know, funny moments that you have experienced in your life. तो हम जैसे मुंबई में ट्रैवल करते हैं, हमने उस तरीके से पूरा प्लान बनाया। मैं और भालचंद्र ही साथ में थे तभी। तो वो प्लान हमने 3 दिन का बनाया, बट वो ट्रैवल टाइम, वो एरिया, वो ज्योग्राफी इतना हमारे लिए अननोन था। अल्टीमेटली हमारा जो रिटर्न जो बस था वो हमने मिस कर दिया, और फिर जो रात हमने गुजारी है एयरपोर्ट पे, और जो वो फनी, तो आज हमें फनी लग रहा है, बट उस दिन तो बिल्कुल फनी नहीं था। I can understand. I know the kind of places where we have customers plants जहाँ हमें जाना पड़ता है। Tier 3, Tier 4 places भी होती है जहाँ पर दूर तक एक चाय का कप भी नहीं मिलता है। It is there as well. Our clients are in if there is a Tier 5, it is there as well. Yeah. True. No, I have been to such places यार जहाँ पर 4 किलोमीटर तक चाय का भी कप आपको नहीं मिलता है। कुछ खाने का तो दूर की बात है। रोड्स भी नहीं रहते कभी रोड्स नहीं है। अरे I remember one of the customers we have गूगल मैप भी काम नहीं करता। Actually, there was a customer that we had gone to. I will not name the customer. We have gone there 4 years back. I sent my team. Bhasinda was part of that particular trip. तो उसमें क्या था? कस्टमर फनी के मोमेंट का भालचंद्र पार्ट है क्या? That is the funniest moment I have. Let me explain it at the end. Okay. So I remember उसमें क्या हुआ था कि वो कस्टमर के पास कस्टमर का प्लांट ऐसी जगह पर था कि वहाँ पर रोड भी नहीं बनी हुई थी। तो डिस्टेंस था 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस था जिसपे कि ऊपर आपको रोड। तो पहले तो बस से वो वहां तक पहुंचे, प्लांट में नहीं, बस में वहां उस स्पॉट तक पहुंचे जहां तक रोड था। उसके बाद ये मुझे फोन करते, मैडम
आगे तो रोड नहीं है, करना क्या है, जाना कैसे है? तो फिर मैंने बोला कि यार कुछ तो ऑप्शन होगा, बाकी लोग तो जा रहे होंगे ना। तो ये लोग आधे घंटे वहां खड़े रहे एंड दे वर थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो दे सॉ अ टेम्पू गोइंग फ्रॉम दैट रोड। तो इन्होंने वो टेम्पू को वाले को बोला कि आप हमें वहां तक छोड़ सकते हो क्या? तो ही सेड 2 घंटे का जर्नी है, तो ही चार्ज hefty अमाउंट टू देम, बट ये लोग टेम्पो में बैठ के गए और जब ये लोग उतरे तो मुझे 2 घंटे बाद इन्होंने फोन किया कि मैडम हम पहुंच हम गए तो हैं। पहुंच गए हमारे। हाँ, हमारी लग रहा है आत्मा वहीं पर है कि जहाँ तक रोड था। So that is one of the moments that I remember. Right. Yeah. Alok, if I have to ask you your funniest moment that you have experienced till now. अब मैं एक केस बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। कस्टमर ने मुझे एक रिक्वायरमेंट भेजा जिसकी वीडियो उन्होंने बना के भेजी कि मटेरियल मुझे परचेस करना है, और उन्होंने मुझे वेंडर्स नहीं बताए क्योंकि उनका NDA साइन था वेंडर्स के साथ, तो उन्होंने बताया नहीं। लेकिन जब उन्होंने वीडियो भेजा तो मुझे वीडियो में OEM का नाम दिख गया। मैंने उसको पॉज करके OEM का नाम लिख के अपने पास रख लिया मोबाइल में। अब मटेरियल का ऑर्डर हो गया, सब कुछ फॉलोअप करने के लिए मैंने फ़ोन लगा दिया। 2 मिनट के बाद रियलाइज हुआ, मैंने अपने वाइफ को फ़ोन किया था मटेरियल के, क्योंकि जो वेंडर का नाम था मेरे वाइफ का नाम, दोनों का नाम सेम था मेरे मोबाइल पे। अरे आई हैव सीन दिस। इसके तो फोन में इफ यू विल गो ना, मेरे ख्याल से ही मस्ट बी हैविंग मोर देन 5000 कॉन्टैक्ट्स। ऐसा कोई अगर आपको आपके बच्चे का नाम रखना है ना और आपको नाम में कंफ्यूजन हो तो इसका फोन बुक चेक कर लो, आपको कोई ना कोई तो नए नए नाम मिलते रहेंगे। एवरी A B C D में 1000 नाम तो रहेंगे इसके। Now I'll tell you the funniest incident. Yeah. That has We have been waiting for that. Yeah. So this is when I was in procurement. एक क्लाइंट था जिसका कुछ ब्रेकडाउन हो गया था। आई वॉज इन ऑफिस, आई कंप्लीटेड ऑफिस, मैं घर गया उस दिन। ऑब्वियसली लाइक एवरी मदर, माई मदर टोल्ड मी कि जा धनिया लेके। आई वेंट आउट टू बाई धनिया। आई वॉज इन पजामा। What time it was? 8:30 होगा। हाँ। 8:39। तो तुम दोनों इन्वॉल्व हो इसमें भी, मतलब भालचंद्र है इसमें है बालचंद्र भाई। So I was on call with Alok and Alok is like कि भाई ये फट गया है क्लाइंट, तुझे कुछ भी करके है ना ये मटेरियल पहुंचाना होगा। और मैंने बोला भाई मैं पजामा और टी-शर्ट में हूँ और मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। सब्जी नहीं, धनिया लेने जा रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक कि अभी कैसे जाऊँ, मेरे जेब में सिर्फ 20 रुपए है धनिया के। ये मेरे को पता नहीं, मैं भिजवाता हूँ तुझे पैसे, टिकट विकेट बुक करवाता। इट्स लाइक जाना कहाँ है? तो ही सेड कि आउट ऑफ महाराष्ट्र जाना है। अच्छा, okay, I am in my pajamas, only phone is with me with 20 rupees. I got the धनिया। मेरे हाथ में धनिया भी है। अच्छा। और ये बोल रहा है कि तू एक काम कर, तू अभी मुंबई सेंट्रल चले जा, वहां पे एक वेंडर के पास एक मटेरियल पड़ा हुआ है, धनिया लेके गया। थर्ड पार्टी फ्रेट कोऑर्डिनेटर के पास वो पड़ा हुआ है, वहां से तुझे उठाना है। वहां से तुझे गुजरात जाना है आज ही रात को। एट night 10:15 I was at Mumbai Central with the material. धनिया तो रह गया कहीं पे। बहुत हेवी मटेरियल भी था इवन तो वो। It was तो वो केबल जॉइंटिंग किट था, weighing somewhere around 25-30 kgs. अच्छा, मैं अभी लिफ्टेड अप, I lifted like a हमाल में ऐसे लिफ्ट करके ट्रेन में भाग रहा हूँ, जिसकी टिकट भी मेरे पास नहीं है अभी तक। टिकट मिली कि नहीं मिली? I slept, बोरिवली आया। बोरिवली आने के बाद मेरे पास टिकट आई। मैं रात को 3:30 बजे वो स्टेशन पहुंचा हूँ जहाँ पे क्लाइंट था, उसका व्हीकल ऑलरेडी था वहीं पे। मैं जाके पहले वो डिलीवर किया प्लांट में, वहाँ पे एक होटल किया। सुबह द नेक्स्ट फनी इंसिडेंट हैपेंस। मैं सुबह उठाऊं, नाउ अगेन इन द सेम क्लोथ्स, आई शावर्ड, कैसे वैसे वही कपड़े पहन के मैं ऑफिस पहुंचा हूँ, जो हमारा ब्रांच ऑफिस था वहाँ पे बड़ोदरा का, वहाँ पे पहुंचा हूँ। नाउ आई डोंट हैव लैपटॉप, नाउ आई डोंट हैव माई बैग। मैं इसको कॉल कर रहा हूँ कि भाई मेरे को एक लैपटॉप तो दे दे, आज का काम कर लूँ क्योंकि रात को जाना है वापस। तब तक मैं क्या करूँ? एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट मी कि मैं कुछ अलग हूँ, क्योंकि मैं वही कपड़े में हूँ जो लोअर में और जो टी-शर्ट पहन के, नो यूनिफॉर्म नथिंग, चप्पल पहना हुआ है मैंने लिटरली ऑफिस के अंदर। और मैं तो तेरी जगह होती पॉकेट से धनिया निकालती, ये लो भाई हाँ ये भी खा लो। बनाओ। So that is the funniest incident has happened with me by far in my professional journey. कस्टमर इज अ प्रायोरिटी। Yeah, but इसमें वो गाना नहीं है, जाना था जापान पहुंच गए चीन, तो मेरा वैसे ही हो गया, लेना था धनिया ले लिया जॉइंटिंग किट। कस्टमर को काफी सपोर्ट मिला तो साइड। राइट। ठीक है, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सेशन टॉकिंग टू यू
I too personally enjoyed a lot. Thank you so much for giving us insights of your role and what exactly you do. You are indeed the Powerpuff Boys of end user department. Thank you so much for giving us time. Thank you. you. Thank you.